बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is most beneficent and merciful. Welcome to all students and parents in our academic session 2020 and 2021. This is class 8 and period is science and I am your science teacher. First of all, I would like to introduce your book. The book is International Lower Secondary Science Part 3. Written by Hu Peck-Lang and published by Marshall Cavendish. And let's move towards your copy. This is your science copy. First of all, you have to fill up the cover page of your copy with basic information. Then move to next page. You have to fill up this next page with basic information, and then you will move to index. You have to maintain index page by writing first semester midterm 2020 and 21, and you are going to maintain this index page by writing chapter number 1 and the work which you are going to do in your copy and you must maintain this index page by date and day. Now next, here is a page. You are going to make title page of first semester midterm has been started 2020 and 21, and then you are going to make the title page of week number 1 and chapter number 1. Name is food and digestion. Must draw here any type of food which you like to draw. Now let's move towards your diary. This is your diary and you have to fill up the cover page of your diary with basic information. Then move towards next page and you have to fill up this next page with basic information and must maintain your diary by writing subjects, by writing day and date, and by writing the homework which I am going to give you during lecture. So first of all, listen to me carefully what I am going to understand you, and then do the homework and also copy work. This is your content, you have got it. This is your content and teacher solution. In this teacher solution all answers are present and all exercises are solved here, and you have to just copy from here into your copy. Now let's move towards chapter number 1. Today I am going to give you today I am going to teach you first chapter, which is food and digestion, and the topic is nutrients in food. When we become tired, we feel hungry, and feeling hungry is the sign that our body needs energy. And when we become tired and we are feeling hungry, then we want to take something, then we want to take food and we want to eat something. Why do we want to take food? Because we need energy, and food gives us number 1 energy. Food gives us energy, and क्यों हमें ये एनर्जी चाहिए होती है? वी नीड एनर्जी टू डू आवर वर्क एंड टू परफॉर्म द वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी. हमें फूड से एनर्जी मिलती है, और ये एनर्जी हमें क्यों चाहिए होती है? क्योंकि हमारे स्पेसिफिक टास्क होते हैं. हर इंसान का अपना स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको कुछ काम करने होते हैं. उन कामों को परफॉर्म करने के लिए, वो सारे काम करने के लिए उसे एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो एनर्जी हमें फूड से हासिल होती है. जैसे कि आपको पढ़ना होता है, खेलना होता है, आपको रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, स्टडी के
के लिए, प्लेइंग के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी आपको फूड से हासिल होती है, जो भी आप फूड लेते हैं। और क्यों चाहिए होती है हमें फूड? कि हमें अपने फंक्शन तो परफॉर्म करने हैं, हमें अपने तो काम करने होते हैं, इसके साथ साथ हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, लाइक हार्ट, लंग्स, स्टमक। तो ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं, इनको भी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की नीड होती है। तो हमें जो सारी एनर्जी मिल रही है वो फूड से हासिल होती है, एंड दिस एनर्जी इज नेसेसरी टू डू आवर वर्क एंड टू परफॉर्म द वाइटल फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन। नाउ नेक्स्ट, हम डिफरेंट टाइप की फूड लेते हैं, हम मिल्क भी लेते हैं, हम मीट भी लेते हैं, हम चिकन फिश भी लेते हैं, हम फ्रूट्स भी लेते हैं, हम वेजिटेबल्स भी लेते हैं। हम डिफरेंट टाइप के फूड्स क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें डिफरेंट टाइप्स के फूड से डिफरेंट मटेरियल्स हासिल होते हैं। एक ही फूड से हमें सारे मटेरियल्स, सारे सब्सटेंसेस नहीं मिलते हैं जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है। तो हर मटेरियल या सब्सटेंस हमें कोई स्पेसिफिक फूड से ही हासिल हो रहा होता है। तो हमें फूड से सबसे पहले क्या मिलता है? एनर्जी हासिल होती है। और सेकंड, फूड प्रोवाइडर्स मटेरियल्स। कौन से मटेरियल प्रोवाइड करता है? वो मटेरियल जो कि हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। अब हमारे जो न्यू सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। और हमारी जब बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, वो डैमेज या वो कट जो आपके चोट लगती है वो कुछ वक्त के बाद रिपेयर हो जाता है। तो वो भी रिपेयर किस वजह से हो रहा है? आप जिस टाइप की फूड लेते हैं, जो हम फूड हासिल करते हैं, उस फूड की वजह से ये डैमेज रिपेयर हो रहा होता है। सो फूड प्रोवाइडर्स मटीरियल किस लिए चाहिए? मटीरियल नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स एंड टू रिपेयर द डैमेज पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। थर्ड, फूड प्रोवाइड्स अस सब्सटेंसेस। अब कौन से सब्सटेंसेस प्रोवाइड करता है? विच आर नेसेसरी फॉर आवर हेल्थ। हमें हेल्दी भी तो रहना है ताकि हम अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकें, हम बीमारियों से बच सकें। अगर हमारी फूड अच्छी नहीं होगी, अगर हमारी डाइट अच्छी नहीं होगी, तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे। हमें हेल्दी फूड लेनी होती है ताकि हम बीमारियों से बच सकें, हमारी हेल्थ अच्छी हो सके। तो हमें फूड से क्या क्या मिल रहा है? फूड प्रोवाइड्स अस एनर्जी टू डू आवर वर्क एंड टू परफॉर्म द वाइटल फंक्शंस ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। सेकेंड, food provides us materials which are necessary for the growth of the body and to repair the damaged parts of the body. And food provides us the substances which are necessary for our health and to fight against diseases. So we are talking about the materials and substances which are present in our food and the energy which we are getting from the food. The material and substances which we are getting from the food, which are present in the food, are called as nutrients. जितने भी तरह के हमें मटेरियल्स मिल रहे हैं, चाहे वो हमारी ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं या हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं, हमें अपने कोई भी कट को सही करने के लिए हमें चाहिए या हमें डिजीज़ से लड़ने के लिए चाहिए, तो वो तमाम सब्सटेंसेस, वो तमाम मटेरियल्स न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। देयर आर 7 nutrients. Different type of nutrient contain, different type of food contain different nutrients. मुख्तलिफ फूड के अंदर मुख्तलिफ nutrients मौजूद होते हैं, and there are 7 nutrients present in our food. Number 1 is carbohydrates, and number 2 is fats. Third is protein. Fourth is fiber. Fiber is also called as roughage. And number 5 is vitamins. 6 is minerals. And 7 is water. All these 7 nutrients are present in our food. जो भी हम फूड लेते हैं, डिफरेंट टाइप के आपको बताया कि हम फूड हासिल कर रहे हैं, उस फूड के अंदर ये तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट।
Carbohydrates are nutrient present in our food, and carbohydrates are made up of element carbon, hydrogen and oxygen. Carbon, hydrogen and oxygen. Okay, what is the function of carbohydrate? Most of the energy we get from carbohydrate. Carbohydrate provides us energy, and most of the energy, जितनी भी हम फूड लेते हैं उन सब में सबसे ज़्यादा एनर्जी हमें कहाँ से हासिल होती है? कार्बोहाइड्रेट से हासिल होती है. So we get most of the energy from carbohydrates. So different type of carbohydrates are present. Here is two types of carbohydrates, sugar and complex carbohydrate. अच्छा, अब what is sugar? शुगर क्या होती है? वो कार्बोहाइड्रेट जिनका टेस्ट स्वीट होता है और वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, वो तमाम कार्बोहाइड्रेट्स शुगर कहलाते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनके मॉलिक्यूल में बहुत सारे स्मॉल मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं और वो स्मॉल बेसिक मॉलिक्यूल्स मिलकर एक लॉन्ग चेन बना रहे होते हैं, यानी उनका मॉलिक्यूल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है. उन्हें हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कहते हैं. शुगर आपको बता दी, शुगर क्या है? जो कि स्वीट है, टेस्ट उनका स्वीट है और वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं. शुगर में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सारे क्या होते हैं? शुगर्स हैं. ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मोनोसैकेराइड्स होते हैं. मोनोसैकेराइड्स मीन कि इनका मॉलिक्यूल सिंपल होता है, वन मॉलिक्यूल होता हैगा, इसमें कोई लंबी चेन मौजूद नहीं होती है. और ये ग्लूकोज और सुक्रोज हमें फ्रूट से हासिल होता है. इसी तरह लैक्टोज भी शुगर है, लेकिन लैक्टोज क्या है? डाइसैकेराइड्स है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के साथ मिलकर बनती है. तो लैक्टोज जो है ये भी क्या हुई? डाइसैकेराइड्स हुई, ये भी शुगर है. और लैक्टोज मौजूद होती है मिल्क के अंदर. और सुक्रोज ये भी शुगर है जो कि किस में पाई जाती है? शुगर केन में मौजूद होती है. और आपने पिया हुआ होगा शुगर केन का जूस जो कि आपको स्वीट टेस्ट दे रहा होता है. So carbohydrates are divided into two types, sugars and complex carbohydrates. शुगर को अगर हम आगे डिस्कस करें तो इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज आ जाता है. Now let's move towards the complex carbohydrates. Complex carbohydrates are cellulose and starch. Complex carbohydrates are starch and cellulose. What is starch? 100 or 1000 molecules of glucose are joined together and then they form a one molecule of starch. ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन होते हैं, आपस में मिलते हैं और मिलने के बाद एक लंबी चेन बनाते हैं. उस लंबी चेन को हम स्टार्च कहते हैं. जिस तरह आपने मोतियों की माला देखी होगी तो वो जो पूरी माला है उसको आप स्टार्च कंसीडर करेंगे और जो इसके अंदर सिंगल बीड्स होती हैं उन्हें आप ग्लूकोज कंसीडर करेंगे. तो इसी तरह से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल मिलते हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स मॉलिक्यूल मिलने के बाद स्टार्च का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. एंड देन cellulose is also a long chain of glucose and cellulose is present in the cell wall of plant cell. आपने प्लांट और एनिमल सेल डिस्कस किया होगा
क्लास 7 में, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि एनिमल सेल जो है उसके बाहर एक बाउंड्री होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है, और प्लांट सेल के अंदर, प्लांट सेल के आउटसाइड जो है एक बाउंड्री है जो कि सेल वॉल होती है, और उसके अंदर एक और बाउंड्री होती है जो सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। So, cellulose is also a long chain of glucose and it is present in the cell wall of plant। और ये जो हमें किस तरह से हासिल होता है, जितने भी फ्रूट्स हैं, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, नट्स होते हैं, जो उनकी आउटर कवरिंग होती है, जो पील होता है जिसे आप छिलका कहते हैं, उसके अंदर सेल्यूलोज मौजूद होता है। ओके, दिस we are talking about carbohydrates, and I have told you that carbohydrates provides us energy, and most of the energy we get from carbohydrates, and 1 gram of carbohydrates provides us 17 kilojoule amount of energy। 1 gram of carbohydrates provides us 17 किलोजूल अमाउंट ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें 17 किलोजूल अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है। और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट हम कंज्यूम कर रहे होते हैं, हम अगर एक्सेस अमाउंट कार्बोहाइड्रेट की अपनी डाइट में लेते हैं तो वो एक्सेस अमाउंट जो है हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाता है, और जब भी हमारी बॉडी को एनर्जी की नीड होती है ये फैट बर्न होता है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जैसे कि जब स्टार्विंग कंडीशन में होते हैं, हमने रोज़ा रखा हुआ होता है या फिर हमारे पास खाने को कुछ मौजूद नहीं होता, उस वक्त भी हमें एनर्जी की नीड होती है और वो एनर्जी हमें अपने डिपॉजिटेड फैट से हासिल हो रही होती है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट न्यूट्रिएंट विच इज फैट। फैट्स, चर्बी, लिपिड, इसको लिपिड भी कहा जाता है, आप अपनी आम जबान में इसे चर्बी भी कहते हैं। ये फैट भी हमारी डाइट में शामिल है, ये भी हमारी फूड का एक न्यूट्रिएंट है, इंग्रेडिएंट है। और फैट क्या करता है, सबसे पहले हम इसकी कॉम्पोजिशन पर आते हैं। फैट भी किससे मिलकर बनता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। ठीक है, फैट इज ऑल्सो कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट भी क्या है, एक लार्ज मॉलिक्यूल होता है, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, और ये भी एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। और वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। जैसे कि आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बन रहा है, ग्लूकोज से मिलकर बनता है। बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट कंबाइन होते हैं तो स्टार्च बन रहा है, सेल्यूलोज बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है। इसी तरह से ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल हैं, ग्लिसरॉल अलग है, फैटी एसिड अलग है। ये जब आपस में मिलते जाते हैं तो फिर एक लॉन्ग चेन बनती है जिसको हम फैट, चर्बी या लिपिड कहते हैं। फैट का भी फंक्शन क्या है, फैट भी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, लाइक कार्बोहाइड्रेट। फैट ऑल्सो प्रोवाइड्स अस एनर्जी, लेकिन डिफरेंस क्या है कि फैट हमें मोर देन ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करती है एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट के मुकाबले में ये हमें डबल से भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। सही, तो ये हमें क्या देता है, एनर्जी देता है, और मोर देन ट्वाइस एनर्जी प्रोवाइड करता है देन कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ फैट्स। हम 2 तरह की फैट लेते हैं। आपको पता है कि हम जो है वो 2 तरह की फैट हासिल करते हैं, जैसे कि हम ऑयल भी ले रहे हैं, हम अपने खानों में ऑयल यूज़ करते हैं। ये ऑयल भी क्या है, फैट है, एक तरह की चर्बी है, लिपिड है। इसी तरह से हम मीट यूज़ करते हैं, उसमें भी चर्बी लगी हुई होती है, वो भी फैट होता है। हम मार्जरीन यूज़ करते हैं और घी यूज़ कर रहे होते हैं, बटर यूज़ करते हैं, चीज़ यूज़ करते हैं। ये सारी क्या है, हमारे पास फैट की एग्जाम्पल्स हैंगी। तो फैट 2 तरह की होती हैं, एक एनिमल फैट और एक प्लांट फैट।
एनिमल फैट कौन सी हुई, जो कि हमें एनिमल सोर्स से हासिल हो रही है, और प्लांट फैट कौन सी है, जो हमें प्लांट सोर्स से हासिल होती है। अब एनिमल फैट में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आ जाएंगी। एनिमल फैट में आपके पास मीट आ गया, ये हमें एनिमल से हासिल होता है, चाहे वो मटन हो, बीफ हो, चिकन हो या फिश हो, टाइप है वो मीट की, उसमें हमें फैट मिल रहा होता है। इसी तरह हमें एग भी हमें एनिमल सोर्स से हासिल होता है, और एग के अंदर भी लिपिड का, फैट का कंटेंट मौजूद होता है। इसी तरह से हम जो बटर ले रहे हैं, मार्जरीन लेते हैं, चीज़ लेते हैं, इन सब के अंदर फैट मौजूद होता है, और दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल फैट। प्लांट फैट में क्या आ जाता है, ऑयल्स, जो हम ऑयल हासिल करते हैं इनकी सीड से, प्लांट की जो सीड है उनसे हम ऑयल हासिल करते हैं, या जो नट्स हैं उनसे ऑयल हासिल करते हैं, और ये जो ऑयल है वो किस में आता है, प्लांट सोर्स में आता है, प्लांट फैट में आता है। जैसे कि हम कोकोनट ऑयल लेते हैं, आलमंड ऑयल, सेसमी ऑयल, एंड इसी तरह से ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कॉर्न ऑयल, घरों में कॉर्न ऑयल भी यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, और भी बहुत सारे ऑयल्स हैं जो कि हम प्लांट सोर्स से हासिल करते हैं, और ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, प्लांट फैट की हैं। तो हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। फैट्स क्या है, फैट किससे बनती है, फैट आर द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ एलिमेंट कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और इसकी जो बेसिक यूनिट है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड है। फंक्शन क्या है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इसकी एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से डबल अमाउंट में हासिल होती है। दो तरह की फैट है, एनिमल फैट और प्लांट फैट। एनिमल फैट हमें एनिमल सोर्स से हासिल होती है, और प्लांट फैट हमें प्लांट सोर्स से हासिल होती है। अच्छा जी, जिस तरह हमने देखा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट से 17 किलो जूल अमाउंट ऑफ एनर्जी हासिल होती है, इसी तरह से 1 ग्राम ऑफ फैट से हमें 37 किलो जूल अमाउंट एनर्जी हासिल होती है। यानी वो कितना दे रहा है, 17 किलो जूल दे रहा है। 17 को आप डबल कर लें, 34 किलो जूल हो गई, और यहाँ पे ये कितनी प्रोवाइड कर रहा है, 37 किलो जूल, यानी मोर देन ट्वाइस एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। फैट का भी वही है जिस तरह आपको कार्बोहाइड्रेट का बताया कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आर डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैट, उसी तरह से जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट की लेते हैं वो भी हमारी बॉडी के अंदर फैट की फॉर्म में ही डिपॉजिट हो जाता है, और हमें स्टार्विंग कंडीशन में जब हमें नीड होती है एनर्जी की, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ लेट्स मूव थर्ड nutrient, which is protein. अब what are protein? Protein are the long chain of अमाइनो एसिड्स। जिस तरह आपसे कहा कि ग्लूकोज बेसिक यूनिट है, ग्लूकोज मिलकर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, फैट में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं और फैट बनता है। इसी तरह से प्रोटीन किससे बनी, प्रोटीन आर लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड क्या है, बेसिक यूनिट है प्रोटीन की, स्मॉल मॉलिक्यूल है, और ये डिफरेंट तरह के अमाइनो एसिड मिलते हैं और प्रोटीन का मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। There are 20 different types of amino acids are present. 20 different types of amino acids are present. 20 तरह के अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं हमारी फूड के अंदर। 20 different types of amino acids are present in our food, and these 20 different types of amino acids join together in different manner and they form different type of protein. हमारी फूड के अंदर जो हम प्रोटीन लेते हैं वो एक ही तरह की नहीं होती, डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स होती हैं। और ये डिफरेंट टाइप की प्रोटीन्स किस तरह बनती हैं कि यही जो 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड हैं, इनके सीक्वेंस अलग होती है, इनके मिलने का स्टाइल अलग होता है, और सीक्वेंस चेंज होने की, तरतीब चेंज होने की वजह से डिफरेंट टाइप की प्रोटीन फॉर्म होती है। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का फंक्शन क्या है,
आपसे मैंने अभी डिस्कस किया था कि फूड हमें वो मटेरियल प्रोवाइड करता है जो हमारी ग्रोथ के लिए नेसेसरी होता है, जो डैमेज पार्ट की रिपेयर करने के लिए डैमेज पार्ट को ज़रूरी होता है। वही वो न्यूट्रिएंट कौन सा है, वो मटेरियल, वो सब्सटेंस प्रोटीन है। तो प्रोटीन इज़ नेसेसरी for our growth and to repair the damaged parts of our body। जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, सेल आपको पता है सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। हम लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो, ह्यूमन बींग्स हो, हम सब सेल से मिलकर बने हैं। तो जो सेल्स हैं, न्यू सेल बनते हैं तो ग्रोथ होती है। पहले एक छोटा चाइल्ड होता है, उसकी ग्रोथ होती है, उसकी हाइट बढ़ती है। किस तरह से उसकी हाइट बढ़ती है कि उसके अंदर न्यू सेल्स की प्रोडक्शन होती है। न्यू सेल्स बनते जाते हैं, जैसे जैसे सेल बनते जाते हैं उसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है। अब वो भी डिपेंड करती है कि उसकी फूड किस तरह से है, उसकी डाइट किस तरह से। अगर डाइट अच्छी होगी, डाइट में प्रोटीन मौजूद होगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी ग्रोथ टॉल होगी, वो टॉल होगा। और अगर उसकी डाइट अच्छी नहीं है, डाइट में प्रोटीन जो सब्सटेंस है, प्रोटीन का जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, न्यूट्रिएंट है, वो अगर लो अमाउंट में होगा तो उसकी ग्रोथ भी रिटार्डेड होगी और वो शॉर्ट हाइटेड होगा। So what is the function of protein? Protein are necessary for the growth of our body, for the formation of new cells of body, and for the formation of tissues। अब ये टिश्यूज क्या होते हैं? आपने सेल पढ़ लिया, सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है जो कि तमाम फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। अब क्या है कि अगर एक ही हम जितने भी हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स मौजूद हैं, हर ऑर्गन सेल से बना है और उस सेल का स्पेसिफिक फंक्शन है। जैसे हमारी आइज़ हैं, ईयर्स हैं, हमारी टंग है, हमारी लिप्स हैं, हर एक का अपना स्पेसिफिक फंक्शन है। आइज़ के जो सेल हैं वो विजन का काम करते हैं, देखने का काम करते हैं। तो वो सेल जिनका सेम फंक्शन है, जिनका सेम स्ट्रक्चर है, जिनकी सेम शेप है, उनके ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। अब टिश्यू के अंदर 2 और मोर देन 2 सेल्स मौजूद हो सकते हैं। तो ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 cells which are similar in their function, structure and shape are called as tissues। समझ में आ गई बात कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, लेकिन जो सेल का ग्रुप होगा, लेकिन कौन सा ग्रुप, जिसमें कि उनका स्ट्रक्चर सेम है, उनका फंक्शन वो एक ही तरह का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी शेप सेम है, उस ग्रुप को हम टिश्यू कहते हैं। ओके, नाउ कम टू आवर टॉपिक। We were discussing about function of protein. So protein are necessary for the growth of new cells, for the growth of tissues and for the formation of enzymes। अब एंजाइम्स क्या होते हैं? What are enzymes? Enzymes are प्रोटीन इन नेचर। प्रोटीन के ही स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हो रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर कंटिन्यूसली कोई ना कोई फंक्शन हो रहा होता है सेल के अंदर। या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन हो रही होती है या फिर मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन हो रहा होता है, या तो मॉलिक्यूल बन रहा होता है या मॉलिक्यूल टूट रहा होता है। ये जो केमिकल रिएक्शन हमारी बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं, उनको स्पीड अप करने के लिए हमें एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। और एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर हैं। सो व्हाट आर एंजाइम्स? एंजाइम्स आर स्पेसिफिक प्रोटीन which are required to speed up the specific function। स्पेसिफिक ही जो भी रिएक्शन हो रहा होगा, स्पेसिफिक रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए हमें स्पेसिफिक एंजाइम्स चाहिए होते हैं। एंड the protein is necessary for the growth of new cells, for the growth of tissue, for the formation of tissue and for the formation of enzymes and for the formation of hormones। हार्मोन्स क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स ऐसे हैं, कुछ ऑर्गन ऐसे हैं जिनसे सिक्रीशन रिलीज होती है और वो सिक्रीशन का अपना एक खास फंक्शन होता है। हर तरह का ऑर्गन जो कि सिक्रीशन रिलीज कर रहा है उसका अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उस सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर बॉडी, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी, फॉर द ग्रोथ ऑफ न्यू सेल्स ऑफ द बॉडी एंड फॉर टिश्यूज, एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमारी बॉडी में कोई कट लग जाता है, कोई डैमेज हो जाता है, कोई चोट हो जाती है, कोई बर्न हो जाता है, तो वो भी कुछ टाइम के बाद रिपेयर हो जाता है, हमारी स्किन नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। तो उस रिपेयरमेंट के लिए भी हमें प्रोटीन की ज़रूरत होती है। It's all about today's lecture. I hope you have got all points of today's lecture and I'm giving you a diary. You have to maintain your diary in proper manner
जैसा कि आप क्लास में डायरी को मेंटेन करते थे उसी तरह से आपको डायरी को मेंटेन करना है। और ये डायरी आप नोट डाउन कर लेंगे। 1 जुलाई की डेट के साथ आप डायरी लिखेंगे, ट्राई टू सॉल्व, राइट आउट पेज नंबर 13। आप इसको जो कि पेज नंबर 13 पर राइट आउट मौजूद है उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये आपकी डायरी है एंड यू मस्ट कंप्लीट योर कॉपी वर्क। यू हैव कंटेंट एंड टीचर सॉल्यूशन फ्रॉम 1 July to 3rd July. Review question number 1, 2, 3 which are present on page number 25. You have to solve these 3 questions, these 3 review questions by the teacher solution. You will write down the question from the book and answers are present in teacher solution and you will write the answer from this teacher solution. Must complete your copy work. We will collect your copy for checking after some time. Stay safe, stay healthy, take care. Inshallah, we will meet soon with our next. We are going to study about, we will complete this nutrients.